Hello everybody. Today we are going to discuss peripheral nervous system. In the previous video we have discussed about the central nervous system, brain और spinal cord के बारे में हमने पढ़ा था. So in this video we are going to study about the peripheral nervous system. So before going into the topic, I have told you there are different types of nerves. How many types of nerves were there? There were 3 types. Okay, one was sensory. Let me change the marker. One was sensory, motor and mixed. Okay, so what was actually happening in sensory? See, if I draw this as a neuron, a simple सा representation अगर कर लूँ, and this is the cyton part and this is the axon part. Cyton, axon. And if this is the sense organs and this side is the central nervous system, so the neurons which are transferring the information from the sense organ to the CNS is called as sensory organs, and they are covered by a membrane which is called as epineurum. Okay, again if we talk about the reverse situation, that if the information is being carried from central nervous system to sense organs, अगर information reverse direction में carry हो रही है like this way, and again it is covered by epineurum. This is CNS, this is sense organ. The information when it is carried from the central nervous system to the effector organ, so it is called as the motor nerves or motor neurons. Okay, in some cases what happens, there are 2 pairs of the neurons, one bringing the information from the sense organs to the central nervous system and another transferring the information from the central nervous system to the sense organs, and this again it is covered by a membranous sheath which is called as epineurum. So these types of nerves, they are called as the mixed nerves. Okay, now coming on to the peripheral nervous system, we will study 2 types of the nerves. One that is arising from the brain and another that is arising from the spinal cord. The one that is arising from the brain is called as cranial nerves, and another that is arising from the spinal cord, it is called as the spinal nerves. Okay, so there are 12 pairs of the cranial nerves. Cranial nerves के 12 pairs हैं. अच्छा, it is not necessary that, suppose this is brain, it is not necessary that information are transferred only from this way. If the information are carried from to the brain also, then also it will be covered under the cranial nerves. Okay, so there are 12 pair of the cranial nerves, and this 12 pair and 12 name you have to learn it very hard, because many times it comes in the exam in the form of give the name of cranial nerve 5, cranial nerve 6. तो इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, तो इसे बहुत ध्यान से देखना. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख दे रही हूँ. तुम लोग सोच रहे होगे क्या है O, या इसको इस तरह से लिखूँ O3 T2 AF AG BSH. तो इसको तुम लोग अपने ट्रिक बना करके किसी भी तरीके से इसको लर्न कर लो. सबसे पहली चीज़ O3 T2 OT AF AG BSH, इस तरीके से याद कर लो. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे इसको वर्टिकली फॉर्म में लिख दे रही हूँ ताकि हम इसके बगल में इसका फुल फॉर्म और इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकें. सो इफ वी टॉक अबाउट O T AF AG BSH. ओके, अगर मैं इसे नंबर दूँ, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बोला था. क्रेनियल नर्व से 12 हैं. फर्स्ट O is olfactory, सेकेंड O is optic, थर्ड O is oculomotor. ठीक है, तो ये तीनों को कैसे हम याद रखेंगे? सी फर्स्ट, अगर हम अपने हैंड्स को टच करें तो सबसे पहले नोज आएगा. सो नोज से क्या है? ऑल्फैक्टरी. आफ्टर दैट ऑप्टिक विल कम, फिर उसके अंदर ऑक्यूलोमोटर. T is for trichlorial
trigeminal, okay, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, this is spinal accessory, and the last one is hypoglossal. Okay, तो ये जो 12 नेम्स है, दिस ऑल नेम यू हैव टू लर्न इट वेरी हार्ड. बार बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मैंने भी वैसे याद किया था. सी अब ये जो 12 टाइप के जो क्रेनियल नर्व्स है, इनमें सम आर सेंसरी, सम आर मोटर एंड सम आर मिक्स्ड. तो हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा सेंसरी है, कौन सा मोटर है और कौन सा मिक्स्ड है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नंबर दे रही हूँ 1, 2, 8. 1, 2 और 8 जो है दैट इज सेंसरी. तो मैं इसके आगे लिख दे रही हूँ सेंसरी, सेंसरी, और जो 8 1 दैट इज सेंसरी. ठीक है, इतना हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज मिक्स्ड की बात करें तो 5, 7, 9 एंड 10. इसमें 2 का गैप है, 2 का गैप है, फिर 1 का गैप है. इस तरह से तुम लोग याद कर सकते हो. 5, 7, 9 एंड 10 आर मिक्स्ड. तो 5 कहाँ गया, दिस ट्राइजेमिनल मिक्स्ड, स्पेशियल मिक्स्ड, ग्लासोफोरेंजियल मिक्स्ड एंड वेगस मिक्स्ड. MIX लिख दे रही हूँ क्योंकि मोटर के लिए हम M से यूज़ कर लेंगे. ऑल द रिमेनिंग आर मोटर. ठीक है, नाउ ऑल्फैक्टरी की अगर हम बात करें, ऑल्फैक्टरी जो है किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेलिंग, स्मेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑप्टिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आई बॉल, आई बॉल के मूवमेंट के लिए. अच्छा, आई बॉल का जो मूवमेंट है लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे मूव करने के लिए ये ऑक्यूलोमोटर यूज होता है. बट ट्राइकॉग्लियर की बात करें अगर हम, तो ट्राइकॉग्लियर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ आई बॉल. ये गोल गोल घुमाने के लिए यूज रहता है, होता है आई बॉल को. ओके, ट्राइकॉग्लियर को एक और नेम देते हैं दैट इज पैथेटिक. ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई ज़्यादा ही आई बॉल गोल गोल घुमा रहा है तो कितना पैथेटिक लग रहा है यार, अब हमेशा आई रोटेट करता रहता है. तो इसको इस तरह से याद कर सकते हो. ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल जो है ना, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ना, OMM. इसको ओम से याद रखना. ठीक है, O फॉर ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर. तो ये भी कई बार पूछता है कि 5.1 कौन सा, 5.2 कौन सा, 5.3 कौन सा है. तो ये लर्न कर लेना तुम लोग. आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बट एक बार अच्छे से लर्न कर लोगे तो आगे काफ़ी टाइम के लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है. तो 5.1 इज ऑप्थेल्मिक, 5.2 इज मैक्सिलरी, 5.3 इज मैंडिबुलर. ओके, जो ट्राइजेमिनल है इसको हम डेंटिस्ट नर्व्स भी कहते हैं, डेंटिस्ट नर्व्स भी कहते हैं. एंड मेनली ये रिस्पॉन्सिबल रहता है मीन्स टंग वगैरह मूवमेंट के लिए, टंग के लिए, जॉ मूवमेंट के लिए. ओके, एब्ड्यूसेंस इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ आई, रोटेशन ऑफ आई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फेशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए, या फूड इनटेक करने के लिए भी कई बार फेशियल वाला ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. ऑडिटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर listening. Glossopharyngeal, it is responsible for saliva secretion, mixing of the food, taking the food inside, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. वैगस, वैगस जो है, वैगस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन वगैरह के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल रहता है ना कि कोई भी फूड अगर हम इंटेक करें तो उसे डाइजेस्ट करना है, तो उसके लिए वैगस रिस्पॉन्सिबल है. स्पाइनल एसेसरी को कई बार एसेसरी स्पाइनल भी तुम लोग देखोगे तो उसे कंफ्यूज मत होना, बोथ आर सेम. सो ये रोटेशन ऑफ द नेक इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. एंड हाइपोग्लॉसल की बात करें तो ये टंग मूवमेंट, माउथ रिलेटेड थिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है.
तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख लेना। ये सबसे पहले अगर तुम लोग लर्न कर लियो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा तुम लोग को आगे के लिए। तो O3 T2 AFAG VSH। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द स्पाइनल नर्व्स। अगर हम स्पाइनल नर्व्स की बात करें, स्पाइनल नर्व्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अब ये जो 31 पेयर्स है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जैसे कि सर्वाइकल, थ्योरेसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सिक्स या कॉक्लियल। ये हम नेम क्यों दे रहे हैं? देखो, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर मैं ये बोलूँ ये स्पाइनल कॉर्ड है, दिस स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। तो जो भी पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड का है, जो भी नर्व स्पाइनल कॉर्ड की जिस वर्टिब्रा से रिलीज होती हैं या निकलती हैं, उसी के बेसिस पे इनको ग्रुप कर दिया गया है। ओके, तो ये हुआ सर्वाइकल। जो सर्वाइकल रीजन है वहाँ से 12 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइजेस, थ्योरेसिक से 8 निकलती हैं, लुम्बर से 5, सैक्रल से 5 एंड कॉक्सिक्स से 1। इतना इसके लिए अभी तक के लिए ये तुम लोग देख लो कि जो सर्वाइकल, थ्योरेसिक, लंबर, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, लाइक C12 T8 L5 S5 एंड C1। तो ये तो हो गया फॉर्मूले के फॉर्म में, ठीक है। अब अगर हम देखो स्पाइनल कॉर्ड के उसको कट करके देखते हैं, अगर जैसे हमने ग्रे मैटर वाइट मैटर देखने के लिए बनाया था, अगर मैं वैसा स्ट्रक्चर कुछ बनाऊँ तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से कुछ दिखेगा हमें। ये हमने बनाया था ग्रे मैटर वाइट मैटर। दिस वॉज द सेंट्रल कैनाल, सो दिस वॉज द डॉर्सल रीजन एंड दिस वॉज द वेंट्रल रीजन। ओके, so यहाँ से क्या, this was the dorsal region and the nerves which are moving from या moving towards the spinal cord, यहाँ पे जो nerves आते हैं that are called as dorsal nerves। और सिमिलरली यहाँ पे जो आती हैं इसके इधर से स्पाइनल कॉर्ड से जो जा रही हैं दैट आर कॉल्ड एज वेंट्रल। तो वेंट्रल रीजन से जो जा रही है वेंट्रल नर्व्स, डॉर्सल रीजन से जो जा रही है दैट इज डॉर्सल नर्व्स। नाउ देयर इज वन गैंग्लियन फाउंड इन द डॉर्सल नर्व्स, इसी को हम सेंसरी भी बोलते हैं, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज मोटर। ये क्योंकि इसके पास इससे लेकर के जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से लेके जा रहा है एंड इट इज ब्रिंगिंग टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। देयर इज वन गैंग्लियन प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज गैंग्लियन ऑफ dorsal nerves। Okay, now see, once they come to this particular region, अच्छा किस पर्टिकुलर रीजन की मैं बात करूँ, देखो जब अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है, इफ आई ड्रॉ यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम अगर बना दिया, इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम बना दिया, तो दोनों वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल फोरामेन। ठीक है, मतलब एक इमेज बना के चलो कि भाई ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों सराउंडिंग में वर्टिब्रा है और जो बीच में एरिया दैट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल फोरामेन। इन द वर्टिब्रल फोरामेन जैसे ही सेंसरी और मोटर दोनों के दोनों क्लोज आएंगे, सो इट इज इनक्लोज इनसाइड द शीथ, शीथ में इनक्लोज हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज हैविंग द मिक्स्ड टाइप। अब इसमें मिक्स्ड टाइप हो गया, दोनों है क्योंकि। नाउ दिस मिक्स्ड टाइप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया या 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। द वन टुवर्ड्स द डॉर्सल इज कॉल्ड एज डॉर्सल रैमस, इसको हम डॉर्सल रैमस बोलते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज वेंट्रल रैमस and the middle one is called as ramus communicans, इसको बोलते हैं ramus communicans। ओके,
डॉर्सल रैमस मेनली डॉर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी तक नर्व्स लेकर के जाता है, मसल्स के पास, स्किन के पास. वेंट्रल रैमस वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी के पास. एंड द रैमस कम्युनिकेंस यूजली कनेक्ट्स दिस सेंट्रल वन विद द गैंग्लियन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये गैंग्लियन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इसको कनेक्ट करता है. तो आई होप दिस स्पाइनल नर्व्स, दिस इज ऑल अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इतना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है तुम लोग के लेवल से, फिर भी मैंने थोड़ा ऊपर ही करके बताया है तुम लोग को. नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना. इसे काफ़ी टाइम रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि भूलते जाते हैं. ऐसे मैं भी खुद भूल जाती हूँ, तो मैं भी कई बार उसको रिवाइज करती रहती हूँ. तो यू ऑल्सो डू दैट. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, प्लीज़ डू मैसेज मी. ओके, थैंक यू.